Hello students, myself Dr. Tina. Today I will give a lecture on polymers. पॉलीमर्स क्या हैं, मैं उनकी इंट्रोडक्शन बताऊंगी आपका, हमारा डेली लाइफ में इनका क्या योगदान है. आई विल गिव द थोरो इंट्रोडक्शन अबाउट पॉलीमर. Polymers form a very important class of material without which the life seems very difficult. They are all around us in everyday use और we are using polymers in our day to day life. हमारी डेली रूटीन लाइफ में we all are depend upon polymers. हम polymers पे ही डिपेंड हैं, like in case of clothes, in pen, in plastic, in papers, in rubber, even in cloth. All the automobile parts, pipes, tanks, packing material, insulation, adhesive matrix for the composite, elastomers, all are made up of polymers. They have a commercial application. Polymer have become an integral part of our life, from toothbrush to a long part of our cars. एक छोटे से टूथब्रश से लेके और जितनी भी बड़ी चीज़ें कार के पार्ट्स हैं, ये सभी पॉलीमर से ही बने हुए हैं. All are made up of polymer. Overall, polymers have commercial application. Even polymer industry is much more worth than $1 trillion. What is the reason behind this amazing success? इसके सक्सेसफुल होने का क्या रीज़न है? क्या रीज़न होगा? Because of their unique property. इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, they are lightweight. They can be molded into different shapes. उनको हम किसी भी शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं. And last not the least, polymers are cheap. And it is a synthesis of organic compounds, composites, biocomposites, without a subsequent fractalization of various properties. Many scientists have developed so many types of polymers. डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर्स डेवलप करे हैं, और जितने भी डेवलप हुए हैं उनकी एप्लीकेशन भी डिफरेंट है इन वेरियस फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, इन इन्वायरमेंटल एंड बायोमेडिकल फील्ड. So I will give the overview of this amazing material which is called polymer. How do they differ from each other? Why? इनकी क्या प्रॉपर्टी है, अमेजिंग क्यों है, ये दूसरे मटेरियल से क्यों डिफरेंट है. Although polymers are not strong as metals, ये metals के जैसे strong नहीं है, but they show sufficient strength and much more flexibility because of its long chain than metals. The strength and flexibility of the polymer can be improved by different method. इसकी स्ट्रेंथ को, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से. There are so many methods like UV radiation, gamma radiation, grafting methods. So we can modify the polymers by different methods. So my lecture include the nomenclature, classification of polymerization. We listen everywhere about a polymer. So the definition arise. What are polymer? What exactly polymer is? Polymer क्या है? The word polymer is derived from the two Greek word. ये दो ग्रीक वर्ड से जनरेट हुआ है, poly and mers. Poly means many, mers repeating unit or units. Means a polymer is a large molecule which is formed by repeated linking of a small molecules called polymers. ये प्रॉपर्टी होती है पॉलीमर्स की, ये डिफरेंट होती है सभी केमिकल्स से जहाँ से बनते हैं. सो वी कैन से दैट इट इज़ ए लार्ज मोलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द रिपीटिंग ऑफ ए स्मॉल यूनिट्स. इट इज़ कॉल्ड पॉलीमर्स. The simple repeating unit forming a polymer molecule is known as monomer. मोनोमर क्या होता है? जो सिंपल यूनिट क्या बनाती है, पॉलीमर को बनाती है, उसको हम मोनोमर्स कहते हैं. दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलीमर्स. सो वी कैन डिफाइन पॉलीमर्स एज a simple molecule with two or more binding sites
through which it forms a covalent linkage with other molecules to form a macromolecules. So we can say that the monomers are therefore building blocks of polymers. All simple molecule, जितने भी simple molecules हैं, they cannot behave as a monomer, but only those with two or more binding sites can act as a monomers. Example देखो, therefore molecules like ammonia, water, ethanol, they are not monomers, but alkene, vinyl chloride, adipic acid, glycol with the two binding site act as a monomers. So these are the monomers. Okay, now the process of formation of a polymer from its monomer is called polymerization. जब polymer बनते हैं, the formation of polymer from its monomer is called polymerization. Means इसको हम define कैसे कर सकते हैं? The polymerization is defined as the chemical reaction, ऐसी chemical reaction जिसमें monomer जो है polymer में convert हो जाता है under a specific condition. Means the chemical reaction in which a monomer is converted to the polymer under a specific conditions, that is known as polymerization. Monomer alone cannot undergo polymerization but requires the presence of a chemicals called initiator. Okay, polymers, this is known as polymerization. And the next our definition, that is macromolecule. What are macromolecule? Molecule polymers having large or high molecular mass is known as macromolecule. Large molecule having high molecular mass is known as macromolecule. So you can see the example of polymerization, that is polythene. Polythene is formed by linking together of a large number of ethene molecule. ये इथीन हो गया, इथीन मोलिक्यूल. पोलीमराइजेशन क्या है? पॉलीथीन. तो इससे क्या हो गया? रिपीटिंग यूनिट है CH2 रिपीटिंग यूनिट ऑफ थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म ए polythene. So this is known as polythene. Now what are degree of polymerization? Degree of polymerization क्या होती है? It is defined as the number of a repeating unit present in a molecule of monomer. Mean कितनी यूनिट हमारी रिपीट हो रही है, जो रिपीटिंग यूनिट होती है इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. हमने एग्जांपल लिया था इसमें इथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, लेकिन पॉलीमराइजेशन हुई तो क्या बन गया? लॉन्ग चेन बन गई. CH2 के n नंबर्स हो गए, तो हम उन नंबर्स को n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो डिग्री ऑफ polymerization is defined as the number of repeating unit present in a polymer molecule. So CH2 double bond CH2, तो this is undergo polymerization to form a polythene. ये क्या हो गया? N. तो in this N is a whole number or it is called the degree of polymerization. In case of addition polymerization, the molar mass of the polymer can be calculated by using the formula. कौन सा फॉर्मूला है? Molar mass of the addition polymer is equal to the degree of polymerization into molar mass of monomer. Polymer produced in a reaction do not have the same degree of polymerization. जो रिएक्शन में पॉलीमर बनता है उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन सेम नहीं होता एंड शो वेरिएशन इन मोलर मास. ये अपने मोलर मास में वेरिएशन शो करते हैं. देयरफॉर normally only average degree of polymerization and average molecular mass are used. So this is the formula given, Mn is equal to dp into molar mass of monomer. So this is the degree of polymerization. Now the next is high polymer. अगर आपसे पूछते हैं हाई पोलीमर क्या होते हैं? हाई पोलीमर्स ऐसे पोलीमर होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है. द पोलीमर विद ए हाई डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन या फिर हाई मोलिकुलर वेट, तो उनको हम कहेंगे हाई पोलीमर्स, सच एज प्लास्टिक हो गया एंड रेजिन्स. ओलिगोपोलीमर्स,
पॉलीमर्स विद लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आर नोन एज ओलिगोपॉलीमर्स। जिनका मोलिकुलर वेट कम होता है उनको हम कहेंगे ओलिगोपॉलीमर्स, उनको हम कहेंगे ओलिगोपॉलीमर्स। एक टर्म होती है पॉलीमर्स में हम यूज़ करते हैं फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी क्या होता है? देखो, द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स और रिएक्टिव साइट्स प्रेजेंट इन ए मोनोमर इज कॉल्ड फंक्शनैलिटी। मीन्स जितने भी एक्टिव बाइंडिंग साइट्स होंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं फंक्शनैलिटी। देखो, इसमें हम क्या करते हैं? ए कंपाउंड एज्यूम फंक्शनैलिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप लाइक OH हो गया, COOH हो गया, NH2 हो गया, SH हो गया, NCO हो गया। तो ये क्या शो करते हैं? ये फंक्शनल ग्रुप है। द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनैलिटी कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग द एग्जाम्पल। फंक्शनैलिटी को कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखिए, मैंने कुछ कंपाउंड्स लिए हैं, उसका एग्जाम्पल से मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही डिफरेंट कंपाउंड्स का आप कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट है कंपाउंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? CH2COOH। मीन्स इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH है, COH है, NH2 है, NCO है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है COOH, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इसकी फंक्शनैलिटी कितनी हुई? 1। तो ये क्या हुआ? मोनोफंक्शनल। सेकंड है इथाइलिन ग्लाइकोल। फॉर्मूला है OH CH2CH2OH। इसमें क्या है? 2 OH ग्रुप हैं, फंक्शनैलिटी कितनी है? 2। तो इसको हम कहेंगे बाई फंक्शनल। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल है मेलोनिक एसिड। इसका COOH.CH2COOH। इसमें क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? 2 हैं। तो ये क्या हो गया? बाई फंक्शनल हो गया। ऐसे ही लैक्टिक एसिड हो गया CH3CHOH इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अल्कोहल ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो 1 1 2 हो गए। तो ये तो क्या हो गया? इट इज़ OH COH। इट वुड बी बाई फंक्शनल। इट इज रॉन्ग मेंशन, इसमें गलत हो गया है, तो इसको आप बाई फंक्शनल कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। ऐसे ही CH6H5NH2 इसमें 1 है, तो ये क्या होगा? मोनो फंक्शनल होगा। तो जितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसको हम फंक्शनैलिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। मोनो फंक्शनल, बाई फंक्शनल, जितने फंक्शनल ग्रुप होंगे उतनी ही ये फंक्शनैलिटी शो करते हैं। उसके बाद फंक्शनैलिटी के बाद वी कैन डिवाइड, देयर आर सो मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, और जो मोनोमर्स भी यूज़ होते हैं। मैं जनरल आपको बताऊंगी कि मोनोमर्स मैंने आपको बताया होते हैं और उनके क्या यूज़ होते हैं। बेसिकली कौन कौन से मोनोमर्स होते हैं, अगर आपसे पूछते हैं आप मोनोमर्स के बारे में बता रहे हैं, तो होते क्या हैं? डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पॉलीमर्स दैट दे फॉर्म, सच एज PE पोलीथाइलिन, PVC पोलीविनाइल क्लोराइड, PS पोलीस्टायरीन, टेफ्लॉन, नायलॉन 66, बेकेलाइट। ये क्या है? मोनोमर्स हैं। इसमें से कुछ एडिशन होते हैं, एडिशन पॉलीमर होते हैं, कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। तो टेबल रिप्रेजेंट द इथाइलिन, स्टायरीन, विनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, नायलॉन 66, बेकेलाइट। तो दीज आर द मोनोमर्स। पॉलीमर्स हो गए पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन को हम क्या कहते हैं? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, फ्लॉन। नायलॉन 66 किससे बनता है? हेक्सामिथाइलिन, डायमीन एंड एडिपिक एसिड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। टाइप होगी एडिशन। पॉलीथीन क्या होता है? एडिशन होता है। स्टायरीन भी एडिशन है, विनाइल क्लोराइड भी एडिशन है, टेफ्लॉन एडिशन है, नायलॉन 66 कंडेंसेशन है, बेकेलाइट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। सो दीज आर द मोनोमर्स। वी कैन क्लासीफाइड द मोनोमर्स इंटू डिफरेंट कैटेगरीज। हम इन अपने मोनोमर्स को डिफरेंट टाइप में क्लासीफाइड भी कर सकते हैं। वाई? Polymer is a generic name given to a vast number of material of high molecular weight. These material exist in countless form and number because of a very large number and type of atom present in their molecule. हम पॉलीमर को डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल बिहेवियर, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पॉलीमर, इनको डिफरेंट वे में क्लासीफाइड कर सकते हैं।
मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स को एक्सप्लेन करूँगी. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल रिस्पॉन्स. In my next lecture, I will discuss in detail. Okay, thank you.